My introduction, first of all, Dr. Arfa Iqbal. I am CEO Punjab Board of Investment and Trade. मैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ आई एम वर्किंग सिंस पास्ट मैनी ईयर्स. एग्जैक्ट साल नहीं बताऊंगी, फिर आप लोग कहेंगे अच्छा ये इतनी बूढ़ी है. But I've been working with federal government since past 20+ years, and I'm from 27th Common Batch of Civil Service. Abhi I am on the visiting faculty of Civil Services Academy and also NSPP, which is National School for Public Policy. So my topics generally there are focused on China-Pakistan Economic Corridor and ease of doing business, which I am going to discuss with you today. I have been posted at different positions, including economic minister in Germany and commercial counselor in China for like 4 years. This was the time when China-Pakistan Economic Corridor was actually developing. I also worked in TDAP, Trade Development Authority of Pakistan. So I have this closer knowledge of trade and economy in Pakistan, and also internationally, as I've been connecting Pakistan with US while I was working as Eisenhower Fellow, and I was then, as I said, working in Germany and China. So those are my international experiences, focusing on economy and trade. And on the education side, I have done my master's from Harvard University, and I have done urban development from MIT. Before that, I did my master's from Leeds University, UK, and prior to that, I was principally trained as a medical doctor, so quite a diverse kind of a situation. So right now, I'm very happy on this advent of commercial court establishment, because it's a huge area, and we have this dispute resolution issue or multiple issues coming our way every now and then, and that's why while introducing myself, I touched upon the areas of economy and trade where I've been working, and I have seen internationally how they do the dispute resolution, especially focused on economy and trade, and how I shouldn't be using the very strong word, but how terribly we deal with it in Pakistan. And now, you know, this initiative by High Court, Punjab High Court, which is a superb initiative of establishing these commercial courts. And you have been appointed, or you have been given this task, the gigantic task, which is not gigantic in its magnitude upfront, because people don't even know that this kind of activity is going on, but gigantic in its significance. So it's this group which is going to build up the image of Pakistan on the international scene in the fields of economy and trade, and telling people internationally that they can come to Pakistan and they can have this very conducive environment and a very smooth dispute resolution mechanism. However, it's not only international, you are also going to have local repercussions, implications, and image building of Pakistan. So I think it is a very, very important step for developing our economy and for developing our trade. So with this background, I would like to move on to the topic. हाँ जी, ये मुझे कहाँ मिल सकता है? I've been told that all of you are additional session judges. Yes. Okay, and you have come from different cities, I assume. From different districts. Okay, so we have representation from all the districts here, Punjab ke? Okay, और अभी commercial court, तो there's only one commercial court which was inaugurated a few days back. So that is the court which is going to be operational immediately. Is that the case? तो ये कब ऑपरेशनल कब होंगे? अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब गिर तो नहीं जाएगा यहाँ से? माइक हटा दें, साइड पे कर दें, या मुझे बेशक दूसरा माइक दे दें अगर, तो आई बी मोर कंफर्टेबल मूविंग कर जाए. राइट जी, तो ये दोनों माइक क्यों चल रहे हैं बाय द वे? एक माइक काफ़ी नहीं है यहाँ पे? इतने ज़्यादा लोग तो नहीं हैं. हाँ जी,
अच्छा ये कैमरे का, ओके, सॉरी फॉर माई इग्नोरेंस, मैं बहुत ए टेक्निकल इंसान हूँ. ओके, सो रोल ऑफ PBIT इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. इस टॉपिक में इफ़ यू कैन सी देर आर 2 एंटिटीज और 2 composites. A is PBIT, Punjab Board of Investment and Trade, and B, ease of doing business. So I'll be very quickly touching upon both. What is PBIT? Okay. This is the building. GR1 में हमारा ऑफिस है जी, एंड पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड जी. थैंक यू. इससे क्या करूँ, बस पकड़ लो. ऑन कैसे होगा? ऑन है, अच्छा. सो नाउ आई हैव 3 mics. ओके, ठीक जी. सो PBIT इज़ द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी. ये जो स्ट्रक्चर है, सिंपली सेड, we have a board of investment at the federal level, and then we have provincial board of investments in all the provinces, and Punjab board of investment is PBIT. The second role which is assigned to PBIT is that we are also secretariat of special economic zones, special economic zone authority actually. उसका सेटअप इस तरीके से है दैट दे हैव BOA which is headed by the Prime Minister. The secretariat is Federal Board of Investment, and at the provincial levels there is SEZ authorities, SEZA, which is headed by the Chief Minister, and secretariat is PBIT. So CEO PBIT ex officio is also CEO SEZA. So we monitor all the special economic zones in Punjab, and there are 9 approved special economic zones. Special economic zones are different from the EPZs and from industrial estates which are around 24-25 in Punjab. मैं सिर्फ पंजाब की हद तक बात कर रही हूँ. तो SCCP से क्योंकि कंपनी को रजिस्टर होना होता है, उसके बाद तमाम जो ट्रांजैक्शंस है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं. आपको ये इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि आपके पास जो केसेस आएंगे वो ज़्यादातर इन्हीं लोगों से रिलेटेड आएंगे. तो एंड देन FBR ऑब्वियसली, क्योंकि टैक्सेशन के ले लें. थैंक यू, अपॉलॉजीज जी, आप लोगों को बहुत सारे काम करना पड़ गया पिछले कुछ मिनट में. उसके बाद आपका होता है जी FBR, बिकॉज ऑल द टैक्सेशन, फेडरल टैक्सेशन, वेदर इट इज़ सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और कस्टम्स, तो ये तीनों जो है ये FBR के अंडर आती हैं और ज़्यादातर बिजनेसेस के रिलेटेड इश्यूज इनके साथ होते हैं. उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोविंस पे. पंजाब में PRA है, लेकिन हर प्रोविंस में अपनी अपनी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं. ये रेवेन्यू अथॉरिटीज़ दे हैंडल ओनली सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज. So all the litigation which will be connected with sales tax on services will be connecting with the provincial revenue authorities. Other than that, these are related with FBR, which is the Federal Board of Revenue, which deals with all other taxations. All other taxation concerning income tax, sales tax and custom duties. Coming down to the provincial level, there are so many taxations which are at the provincial level. Excise tax है आपका, मेन तो PRA ने हैंडल पंजाब में कर लिया ना, which is sales tax on services. And then there is ये vehicle का, ये excise में आ जाता है, property taxes, and there are so many other taxes जो provincial level पे आते हैं. फिर बहुत से rules and regulations हैं जो provincial level पर होते हैं. उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट BOI has come up with a regulatory catalog. In that catalog, concerning with Punjab, there are 22 departments and there are 83 RLCOs. RLCOs are registrations, L is license, C are certificates, and O is for other NOCs, other whatever documentations required. So O is for others. These are RLCOs, and there are 83 RLCOs as per BOI catalog, regulatory catalog concerning Punjab. अभी हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं? We are updating the RLCOs and we are updating the catalog. So we would be then seeing, अच्छा उसमें मैंने जो पर्सनली एक उनको कहा, डायरेक्शन दिया टू द टीम वर्किंग ऑन इट कि 100% को कवर करने की बजाय टू बिगिन विद फिगर इट आउट
कि जो हमारे हमने वी हैव हैड अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस विद different companies, exporters, chambers, associations. So based on their feedback, my view is that upfront we come up with the regulations जो 70% of businesses को impact कर रही हैं, और फिर उसके अंदर हम उन डिपार्टमेंट्स को देखें तो वो 22 से अभी हम कर रहे हैं इस पे काम, तो आई कैन नॉट कम अप विद एग्जैक्ट फिगर, मे बी 22 की बजाय वो 10 रह जाएं, जस्ट अस्यूमिंग. तो देन वील बी फोकसिंग एज स्टेप 1 इन फेज 1 ऑन दोज डिपार्टमेंट्स एंड दोज रेगुलेशंस, एंड देन एज सेकेंड स्टेप हम पूरे रेगुलेशंस के ऊपर जाएंगे. तो इसमें यह है कि हमने वो रेगुलेटरी मैपिंग करनी है. मैं आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन the second generation PRMI, which is the regulatory modernization work. तो उसके अंदर हम ये पहले सबसे मैपिंग कर रहे हैं. मैपिंग में ये आ रहा है कि कितने RLCOs हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, प्रेवलेंट उसकी क्या मैथडोलॉजी है. इन रेगुलेशंस को डिपार्टमेंट से फीडबैक लिया जा रहा है कि आप बताइए कि आपके ख्याल से इसमें से कौन सी रेगुलेशन है जिसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है. सबसे पहले ये कि इसमें से कौन सी हैं जो इस वक्त एग्जिस्टिंग ऑनलाइन हो रही हैं, कौन से, फॉर एग्जांपल FBR, विच इज़ अ रॉन्ग एग्जांपल क्योंकि वो फेडरल का है, बट लेट मी एक्सप्लेन इट बाय अ रॉन्ग एग्जांपल. सो FBR के अंदर आप लोगों को पता होगा, अगर किसी को NTN लेना है तो वो ऑनलाइन ले सकता है, अगर किसी को एग्जेम्पशंस अप्लाई करनी है तो ऑनलाइन कर सकते हैं. FBR एक्चुअली इज़ वन ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान जिनका ऑनलाइन ऑटोमेशन सिस्टम is very good actually, not I mean ideal, वो तो ideal पे तो चीज़ें पता नहीं कब पहुँचती हैं, but one of those organizations, one of the best automation in Pakistan is FBR. तो उसमें आप ये सब कुछ जो है ये ऑनलाइन करते हैं. कुछ चीज़ें अभी भी होंगी जो मैनुअल होती हैं. तो सबसे पहले हमें मैपिंग में ये हम देख रहे हैं कि ऑटोमेटेड क्या कुछ है, ऑनलाइन क्या कुछ है. उसके बाद ये देख रहे हैं कि ये जितनी रेगुलेशंस हैं ये सब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से कनेक्टेड हैं. इन रेगुलेशंस में डिपार्टमेंट ये मशवरा देंगे, अपना इनपुट देंगे, अपना फीडबैक देंगे कि किन रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, किन रेगुलेशंस की ज़रूरत ही नहीं है, ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, इनको ख़त्म ही कर दिया जाए तो बेहतर होगा. सो दैट इज़ द स्टेज जो मैपिंग के बाद रेगुलेशन का एनालिसिस होता है. And after that analysis, we will come up with the number of regulations कि इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, इनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, और इन एक्टिविटीज़ के लिए कहाँ पर हमें लीगल एक्शन लेना है, लीगल प्रोसीजर फॉलो करना है, और कहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव फॉलो करना है. सो देयर आर मेनी रेगुलेशंस कि जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो हैं वो उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली ही ख़त्म कर सकते हैं, और कहाँ ऐसा है कि हमें उसको उसके कोई एक्ट में चेंज करना पड़ेगा, कोई ऑर्डिनेंस में चेंज करना पड़ेगा, उसको कैबिनेट में ले जाना पड़ेगा. तो ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. ये सारी एक्टिविटी जब हम कर लेंगे तो उसके बाद हम स्टेप 3 पे जाएंगे. स्टेप 3 पे जाने से पहले मैं आई विल कम बैक टू द 10 indicators of ease of doing business. So I'll take a pause. I'll request all of you to please wake up at least for 30 seconds. 30 seconds में मैं 3 नाम लेना चाहती हूँ. वो 3 नाम आपको पता होना चाहिए. Ease of doing business, which is EODB. Second is PRMI, which is regulatory modernization. And third name is regulatory bulletin. Regulatory bulletin is the third and final step. अब आप सोच सकते हैं दोबारा. अब मैं EODB पे वापस आती हूँ और EODB के जो 10 इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर मैं बात करूँगी, एंड देन वी विल मूव ऑन टू PRMI. टाइम पे भी नज़र कर लूँ, आपके पास होंगी, जब आपको ज़रूरत महसूस हो आप उसको पढ़ सकते हैं. सो स्टार्टिंग अ बिजनेस, जहाँ पे पाकिस्तान 72 नंबर पे है, कितने प्रोसीजर्स हैं, इस वक्त हम क्लेम क्या करते हैं कि कितना टाइम उसमें लिया जाता है.
And so is the case with all others as well कि कंस्ट्रक्शन परमिट्स के अंदर हम अभी ये कहते हैं कि हम 112 हमारा रैंकिंग है और इसमें 12 प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं एंड 48 डेज वी क्लेम के इसमें लगते हैं. प्रैक्टिकली कितने लगते हैं वो मैं नहीं कह सकती. सो दिस इज़ अ पॉइंट रिलेटेड विद यू कि इफ़ द गवर्नमेंट क्लेम्स के कंस्ट्रक्शन परमिट में 48 डेज लग रहे हैं और आप किसी भी वजह से हमने उसमें 48 डेज से डबल ट्रिपल टाइम लगा दिया है, कंपनी के और बहुत से प्रॉब्लम्स उसकी वजह से हो जाते हैं, पेमेंट्स के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ऑर्डर्स के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो देन ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल डिस्प्यूट्स विच अराइज आउट ऑफ दिस सिचुएशन. सो ये मैं आपको इस इन नंबर ऑफ डेज की एक सिग्निफिकेंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. इसमें आई गिव यू एन एग्जाम्पल हियर. देयर इज़ अ चाइनीज़ कंपनी, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ विद पंजमिन माइंस के अंदर और उन्होंने कहा कि जी हम इधर वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, आप में से सरगोदा से कौन है? एनीबडी फ्रॉम सरगोदा? अच्छा, तो सरगोदा का ये केस है. तो उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पर इस साइट पे कॉन्ट्रैक्ट किया, हम माइनिंग करेंगे, यहाँ से सैंड एंड ग्रेवल निकालेंगे और कॉन्ट्रैक्ट ये था कि वो उस साइट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ मटेरियल विल बी यूटिलाइज्ड फॉर CPEC प्रोजेक्ट्स ओनली. एंड CPEC इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड देयर वर 3 CPEC प्रोजेक्ट्स और 2 प्रोजेक्ट्स विच वर आइडेंटिफाइड फॉर यूटिलाइजिंग दिस मटेरियल. अब क्या हुआ कि ये 2017 की बात है, तो क्या हुआ कि उनको 15 महीने इंटीरियर मिनिस्ट्री में लग गए टू गेट वन NOC. And then so was the case with other NOCs and other permissions that they got hold of. With the result कि by the time सारे permissions मिल गए तो जिन projects के लिए वो material इस्तेमाल होना था वो project complete हो चुके थे. Now the problem arose कि जी वो project तो complete हो गया, अब इस material का क्या किया जाए. तो हमने, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट हैं तो हमारा तो हमने कहा कि जी अब ये मटेरियल जो है यू कांट टेक दैट मटेरियल आउट ऑफ द प्रेमिसेस बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट द मटेरियल कुड हैव बीन यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स एंड दोज प्रोजेक्ट्स आर डन नाउ. The Chinese company actually they were very upset. Obviously they still are very upset and they said that it's our material, we have invested so much money, you did not give us approvals within time, and in the meantime the projects are completed, we are not at fault, so please allow us to either take that material out and that's our material, or you allow us to utilize that material in some other project which again is a CPEC project, but we take this material out and we take it to that specific project. So not the specific project mentioned in the agreement, but another specific project under CPEC. So this is an issue, a current issue going on, and we still don't know how to go about it. So these are the kind of problems which will come to you now. That then it's up to you how you decide it. They went to the department, they went to the concerned DG, they came to our office, they went to CS office, they went to Chief Minister office, and we are trying to see how to settle this issue. But the example is quoted here to give you an idea what kind of issues you are going to face and how you can relate those issues to these timelines which I am sharing with you right now. So if this is the construction permit, but if the mining permit is supposed to be given in a specific time, or whatever permit they were requiring from interior were to be given in a specified time period, and it was given after like 15 months, so it leads to a number of complications later on. So this is just to share with you the significance जो हम timelines at least verbally कह देते हैं. Registering property, we say that it is 5 days time. Pakistan is ranking 151 in EODB, and getting electricity, we say the time taken is 58 days. There are 4 procedures involved, and 123 is the ranking of Pakistan. Now again, I have my reservations. 58 days. We have to look at the projects which are currently underway. We have SCZs
इन रहीम यार खान, इन बिहारी, आप में से रहीम यार खान से कौन है? आप हैं। और बिहारी से? एनीबडी फ्रॉम बिहारी है? आप हैं। आपको मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप देखिएगा कि जो रहीम यार खान में और बिहारी में पंजाब गवर्नमेंट के स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो कब बने, कब SEZ डिक्लेयर हुए, कब उनको बिजली मिल रही है, कब उनको गैस मिल रही है। हम ये कहते हैं कि SEZ के अंदर, अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जो आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, आई एम डाइवर्टिंग बिकॉज आई डोंट वांट इट टू बी अ वेरी एकेडमिक काइंड ऑफ अ टॉक। सो द kind of problems that you will be facing, according to the SEZ Act, any SEZ enterprise in special economic zone, which is SEZ, they have to start their activity within 6 months and they have to be in production in 2 years, and then another 6 months they have to get a certificate from us that they are all set and they are in production and and a couple of other things. So these are the timelines which they commit once they are granted the status of SEZ enterprise. And then if we look at the colonization status of our SEZs, मैंने रहीम यार खान बिहारी की ख़ास तौर पर बात की. I didn't want to point them out, but so is the position in other SEZs. We have 9 SEZs. एक भलवाल के अंदर है, 3 फैसलाबाद के अंदर है, एक ये शेखुपुरा के अंदर है, कायद आज़म बिजनेस पार्क बिहारी में है, रहीम यार खान में है, और कौन से हैं, whatever. So हमारा colonization status हर एक में बहुत encouraging है. So I think बिहारी में we have a colonization status of maybe 20-23%, 16%. रहीम यार खान में भी ये हालात हैं. इवन हमारे जो बड़े शहरों के पास हैं उनके ये हालात हैं. भलवाल के हालात बुरे हैं. तो colonization में हम we are not faring very good on colonization. So now is the big question that once SEZ enterprises were given their status like maybe 5 years back or 8 years back, and still they are not operational, and we can't count them towards colonization. Colonization is when there is operational industry going on there. तो क्या वजह हुई? असूलन तो उन सब को इस वक्त कैंसिल हो जाने चाहिए प्लॉट्स, उनको सरेंडर कर देना. सरेंडर भी नहीं, अब तो कैंसिलेशन पे जाते हैं, पेनल्टी लगती है, कैंसिलेशन होता है. दे शुड बी आउट ऑफ दैट SEZ एंड वी शुड गेट मोर इंडस्ट्रीज देयर. बट वी कांट डू दैट बिकॉज वो कहते हैं जी हमें बिजली नहीं मिली तो हम काम कैसे करेंगे, विच इज़ अ वेरी वेरी जेन्युइन कंसर्न. If government's responsibility is to provide electricity and gas and infrastructure, and government has not fulfilled their own responsibilities, how can we then take them to the court? But we are doing it. कि अगर हम उनको ये नोटिस भेजते हैं, वो हमें जवाब दे रहे हैं. अभी हम वी आर इन द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग दीज लेटर्स टू ऑल द एंटरप्राइजेस जो भी ऑपरेशनलाइज नहीं हुए. तो अब हम इंतज़ार करेंगे कि वो हमें क्या जवाब देते हैं. बट माई पॉइंट इज़ कि वो तो लिटिगेशन में जाएंगे. हम उनको लेटर लिख रहे हैं, उसके बाद हम कहेंगे अब तो हम तुम्हारे प्लॉट कैंसिल करेंगे. कई जेन्युइन केसेस होंगे और कई ऐसे केसेस होंगे कि जिनके साथ जहाँ हम एट फॉल्ट हैं. दैट्स वेयर योर रोल कम्स इन. सो पीपल विल कम टू यू एंड दे विल टेल यू कि हमें SEZ का स्टेटस इन्होंने दे दिया था, लेकिन उसके बाद हमें बिजली नहीं दी, या गैस नहीं दी, या सड़क नहीं दी, या सीवरेज नहीं दिया, या वाटर सप्लाई नहीं दी, तो हम कैसे ऑपरेशनलाइज हो जाते हैं. सो दिस इज़ वन इशू दैट यू विल बी फेसिंग व्हेन यू विल बी इन कमर्शियल कोर्स. फिर हम भी आपके पास आएंगे, हम आपसे ये कहेंगे कि इस जगह पे तो हमने इनको सारी चीज़ें दे दी और इसके बावजूद इन्होंने 2 साल में ऑपरेशन में ये नहीं गए, तो अब इनको हमने निकालना है यहाँ से. तो हम भी कुछ केसेस में सच्चे होंगे, कुछ केसेस में वो सच्चे होंगे. सिमिलरली वी गिव देम एग्जेम्पशन, कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन ऑन द प्लांट एंड मशीनरी जो वो एज SEZ इंपोर्ट करेंगे एज कैपिटल गुड्स. जब वो कैपिटल गुड के तौर पर उसको इधर लेकर आएंगे तो उनको 2 साल के अंदर अंदर लेकर आना है, और उनको सिर्फ वो प्लांट एंड मशीनरी लेकर आना है जिसके लिए हमने उनको एग्जेम्पशन दी होगी. अगेन दिस विल बी द काइंड ऑफ इशू विच विल बी कमिंग टू यू
कि हमने उनको एग्जेम्पशन दे दी। अभी मैंने रिसेंटली, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द कंपनी, आई गॉट एक्चुअली क्रॉस चेक्ड द कंपनीज जिन्होंने हमसे एग्जेम्पशंस पिछले कई सालों में ली, 2-1 साल में ली। एक SEZ में, वहाँ पे मैंने अपनी टीम भेजी, मैंने कहा देख कर आए उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी लगाया है कि नहीं लगाया, लगाया है तो कितना लगाया, हमसे क्या अप्रूवल ली थी, वहाँ पे क्या लगाया है। तो कुछ केसेस हमारे सामने आए जहाँ ये पता चला कि उन्होंने अप्रूवल ले ली, उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट कर लिया, उसको ड्यूटी फ्री उनको मिल गया, और फिर क्या हुआ कि अभी उनका 100% प्लांट एंड मशीनरी नहीं आया, जबकि 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अब क्या होगा, अब जब वो उस प्लांट एंड मशीनरी को इंपोर्ट करेंगे तो वो तो टाइम बाहर हो चुका है। हम अगर आंखें बंद कर लें तो वो और बात है, या हम ओवरलुक हो जाए टाइम वर्कलोड की वजह से तो और बात है, लेकिन जहां हमने वो देख लिया है, अब हम तो उनको लेटर लिख रहे हैं कि आपके तो 2 साल पूरे हो चुके हैं, अब आप मजीद प्लांट एंड मशीनरी नहीं ला सकते। तो इस किस्म के केसेस आपके पास आएंगे फिर रिजॉल्व होने के लिए कि जी ये अब इस वक्त में एग्जेम्पशन कैसे अवेल कर सकते थे। या अनदर एग्जांपल, देयर इज़ वन कंपनी, उनने हमसे एग्जेम्पशन लिया, दे इम्पोर्टेड ऑल द प्लांट एंड मशीनरी, और उसके बाद वो 2 साल के अंदर अंदर वहाँ से अपना बिजनेस वाइंड अप करके उस इकोनॉमिक जोन से मूव आउट कर गए। अब हम उन्हें ट्रैक करवा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जितना प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट किया था वो ड्यूटी फ्री किया था, तो वो कहाँ गया प्लांट एंड मशीनरी। वो प्लांट एंड मशीनरी जब ड्यूटी फ्री लाते हैं और उसके बाद वो आम मार्केट में सेल कर देंगे तो उनको तो एडवांटेज हो जाएगा उसका। तो नाउ वी आर ट्रैकिंग देम डाउन दैट वेयर इज दैट कंपनी गॉन, वेयर इज दैट प्लांट एंड मशीनरी। So these are the kind of issues that will be coming to you vis-a-vis SEZs, Special Economic Zones, and many more. ये तो जो मेरे जहन में अभी आता जा रहा है, ये मेरा पार्ट ऑफ वो नहीं है लेक्चर या टॉक, बट एज इट कीप्स कमिंग टू मी तो मैं आपसे शेयर करती जा रही हूँ। इनफैक्ट मैंने आपकी अभी डायरेक्टर प्रोग्राम को ये रिक्वेस्ट भी की है कि कमर्शियल कोड्स पे जब बात होती है, इसके बाद कोई रिफ्रेशर होता है या कुछ, तो CPEC को और SEZs को, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को शुड बी टेकन एज अ सेपरेट टॉपिक, क्योंकि आपके पास ज़्यादातर उसके केसेस आने वाले हैं। अच्छा जी, पेइंग टैक्सेस की बात हो गई। अच्छा, टैक्सेस हमारे 2 तरह के हैं, मैंने जैसे बात की है। सबसे ज़्यादा जो आपके पास केसेस आने का चांस है वो टैक्सेस पे आएंगे, क्योंकि टैक्सेस पे भी मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ, अगैन कनेक्टिंग इट विद प्रेवलेंट प्रैक्टिसेस, कि टैक्सेस में बहुत सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो एग्जैम्प्ट हैं। आप में से किसी को कोई आइडिया है कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो टैक्सेस या इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स या कस्टम ड्यूटी से एग्जैम्प्ट हैं? एनी आइडिया, बिग आइडिया? एक्सपोर्ट रिलेटेड और जी जुडिशियल अलाउंस भी एग्जैम्प्ट है, ठीक है, लेकिन अलाउंसेस बिजनेसेस पे नहीं होंगे, वो इंडिविजुअल्स के होंगे। सो इस वक्त में हम इस पे बात कर रहे हैं बिजनेसेस पे। अलाउंसेस वाकई एग्जैम्प्ट है, बड़ा मज़ा आता है उन अलाउंसेस का। एनीथिंग एल्स विच इज़ एग्जैम्प्ट बिजनेसेस से रिलेटेड इन योर ओपिनियन, कोई एनीथिंग वेग दैट कम्स टू योर माइंड? मेडिकल इक्विपमेंट जी, सॉरी, चैरिटी पर्पस के लिए, ओके, हाँ, वहाँ पे भी एग्जेम्पशंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं, राइट। तो ऐसे बहुत से सेक्टर्स होते हैं जिनको हुकूमत ले जाती है अपने। मैं FBR की अगर बात करूं तो इनकम टैक्स में सेकंड स्केड्यूल में चले जाते हैं कि इसको टैक्सेस या तो कम रेट पे हैं या ख़त्म हो रहे हैं, या हर फाइनेंस बिल में चेंजेस भी आते हैं, अमेंडमेंट्स, कंटिन्यूस अमेंडमेंट इसके अंदर आती हैं। फिर ये कि इसी तरह हम जैसे कोई मेडिकल इक्विपमेंट आ रहा है या कोई, वो भी सारे नहीं, उसकी भी वो भी स्पेसिफाई होगा। सोलर पे बड़ा जोर था तो सोलर को आ गया, IT एंड IT एनेबल्ड सर्विसेज इसके अंदर आ गई। इसी तरह स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जैसे मैंने अभी बताया है कि SEZ एंटरप्राइज के कैपिटल गुड्स जो इंपोर्ट होने हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। इसी तरह जी, सॉरी, इलेक्ट्रिक कार्स, एब्सोल्युटली। EV के ऊपर तो बल्कि अभी नई पॉलिसी भी आ रही है, और EV के हवाले से
फेडरल गवर्नमेंट ने अब प्रोविंसेस को भी कहा है कि वो भी अपने कोई उनको एक्साइज के हिसाब से कोई मराहत दें, जो अभी तक तो नहीं दी गई, बट वी आर वर्किंग ऑन, वी से मीन्स पंजाब गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दिस कि एक्साइज में ईवी को हम कहाँ लेकर जाएं. सो ईवी पॉलिसी एब्सोल्युटली यस, यू आर राइट. फिर और कौन से इस तरह मुख्तलिफ हैं जिनको कोई ना कोई कंसेशंस दी जा रही हैं. अब ये कंसेशंस जो हैं इनके अपने अपने डायनामिक्स होते हैं. कहीं पे एज आई सेड कि एक तो हर साल इसमें अमेंडमेंट्स भी आती हैं, सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि हमारे पास आई वाज कमिश्नर अपील फॉर 2 years, तो लोग एट टाइम्स जो है ना वो गलत लेके आ जाते थे, जी ये एग्जाम्शन हमें मिलनी थी, मिली नहीं है. तो वो फिर जिस वक्त थोड़ा सा पढ़ के देखो तो पता चलता है कि वो तो अगले साल की अमेंडमेंट में ख़त्म भी हो चुकी है और लोग अभी तक पिछली लेकर जो कंसेशन मिली थी वो लेकर आ रहे हैं. तो इसलिए एक तो ये कि ये अमेंडमेंट्स हर साल आती हैं. दूसरी बात ये है कि सेक्टर्स इसमें आते और जाते रहते हैं. कभी अभी ये ईवी का इन्होंने मेंशन किया, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो हमारे भेड़चाल भी तो कुछ चलती है ना, वो वोग में आ गया कि ईवी पे ज़रूर कोई बात होनी चाहिए उसमें, बट इट्स अ वेरी गुड सेक्टर. सोलर पे बात हो गई और कई चीज़ों पे बात हो गई. सो वी हैव टू सी कि ये जो कंसेशन मिली है ये एग्जैक्ट मिली क्या है, रेट कम हुआ है या टोटल एग्जाम्शन मिली है, इंपोर्ट स्टेज की एग्जाम्शन है, तो क्या ड्यूटी एग्जाम्शन है, कस्टम्स की एग्जाम्शन है, या सेल्स टैक्स की एग्जाम्शन है, या इनकम टैक्स की एग्जाम्शन है. अगर इनकम टैक्स की एग्जाम्शन है तो कितने सालों के लिए आ रही है. तो ये वो चीज़ें हैं जब आप कमर्शियल कोर्ट्स में जा रहे हैं और जहाँ पर बिजनेसेस ने आना है तो जाहिर है कि उसमें इससे रिलेटेड बातचीत ज़्यादा हो रही होगी. ग्रीन फील्ड, अभी ग्रीन फील्ड को एग्जाम्शंस मिली हैं, तो ग्रीन फील्ड को तो उन्होंने फिर डिफ़ाइन किया. अच्छा, जब ये आ गई एग्जाम्शन तो फिर हमने कहा जी आपने ग्रीन फील्ड को डिफ़ाइन नहीं हम लोगों ने किया और एग्जाम्शन दे दी है. तो देन देयर वाज एन अमेंडमेंट और ऐड ऑन किया गया कि ग्रीन फील्ड को डिफ़ाइन किया जाए कि ग्रीन फील्ड किसको हम ग्रीन फील्ड मानेंगे. तो इसमें कौन उसकी डेफिनेशन में आता है, फिर कब से वो उसको मराहत दी जा रही हैं, तो वो सब देखनी पड़ेंगी जब आपके पास उससे रिलेटेड इश्यूज आएंगे, केसेस आएंगे. इसी तरह स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे जब हम बात करते हैं तो उसमें 10 साल की टैक्स एग्जाम्शन है, इनकम टैक्स एग्जाम्शन है. अच्छा, अब उसमें एक क्या पॉइंट इन्होंने निकाला, वो बल्कि अभी हमने फाइट किया, इंशाल्लाह कुछ दिन में हम उसको कर लेंगे बिजनेस फ्रेंडली मज़ीद. मगर इनिशियली क्या बात हुई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनिशियली क्या अभी तक भी वही हो रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के अंदर 10 साल की इनकम टैक्स की एग्जाम्शन दे दी. गुड, फाइन, हम इनसे इनकम टैक्स नहीं लेंगे. लेकिन इनकम टैक्स में एक होता है टर्नओवर टैक्स, आई थिंक 1% के रेट पे होता है. तो उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स तो नहीं लेंगे पर टर्नओवर टैक्स तो हम लेंगे इनसे. अच्छा, इस पे बहुत से क्वार्टर्स में बड़ी एक वो आई एप्रीहेंशंस भी थी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बिकॉज वाइल आई वॉज कमर्शियल काउंसलर इन चाइना तो मैं हर जगह जाकर प्रमोट करती थी जी हम आपको इनकम टैक्स की छूट दे रहे हैं, सो पाकिस्तान इज़ अ वेरी गुड प्लेस. उस वक्त मैं पंजाब की नहीं पाकिस्तान की बात करती थी. पाकिस्तान इज़ एन एक्सेलेंट प्लेस टू कम एंड इन्वेस्ट एंड डू बिजनेस. और जब मैं यहाँ आई और मैं टेबल के दूसरी तरफ बैठी और मेरे पास कोई एग्जाम्शन का केस आया तो उन्होंने कहा कि जी इनको इनकम, मैंने कहा इसको क्यों आप एग्जाम्शन ये लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो इस पर तो टैक्स लगना ही नहीं है, ये तो फॉरेन इन्वेस्टर है जो कि इकोनॉमिक जोन के अंदर है, सो इसको तो टैक्स नहीं लगना चाहिए. तो टू माय सरप्राइज देन माय इंस्पेक्टर टोल्ड मी कि जी नहीं, इस पर हम इनकम टैक्स नहीं लगाते लेकिन हम इनके ऊपर टर्नओवर टैक्स लगाते हैं. लिहाजा ये इस वक्त हमसे उस सिलसिले में बात करने आए हैं. तो आई एक्चुअली यू नो वॉज अ लिटिल टेकन अबैक कि अच्छा मैं तो वहाँ पे कुछ और बातें कर रही हूँ और यहाँ पे स्लाइटली वो डिफरेंट हो रहा है. लेकिन फिर हमने इसकी क्लैरिफिकेशंस भी ली भी और अभी ये फेडरल लेवल पर टेकअप हुआ है. मैं स्पेसिफिक इशू की बात कर रही हूँ, तो ऐसे इश्यूज आपके पास आएंगे. अब हम ये टेकअप कर रहे हैं कि जब कोई इन्वेस्टर आ रहा है और वो इकोनॉमिक जोन में जा रहा है और हमने फॉरेन इन्वेस्टर या लोकल भी है और हमने उसको कहा है कि तुम इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट हो, तो देन हियर इनकम टैक्स शुड इंक्लूड टर्नओवर टैक्स एज वेल.
अभी ये स्टांस है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ, वी आर वेरी होपफुल, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स, तक नहीं हुआ। तो अब जब आपके पास कोई ऐसा केस आता है और वो आपसे कहते हैं, तो ऑब्वियसली देन यू हैव टू सी कि ये कितने अरसे तक टर्नओवर टैक्स माफ़ नहीं था और अब कब से ये माफ़ होगा, अगर हो गया तो इस किस्म की बहुत सी चीज़ें। सिमिलरली फॉर ग्रीन फील्ड सेल्स टैक्स में पहले ये डिफ़ाइन नहीं था, तो उसमें हमें बहुत से इश्यूज आ रहे थे, तो ये हम कंटिन्यूसली इन चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं। अच्छा, टैक्सेस पे एक बात और है कि टैक्सेस मैंने पहले ही कह दिया था कि 3 लेवल्स पे लिए जा रहे हैं, एक FBR ले रहा है, एक PRA ले रहा है पंजाब में, और फिर बहुत से प्रोविंशियल टैक्सेस हैं जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ले रहे हैं। तो उनमें से अच्छा, इसको हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी लेकर आ रहे हैं कि इतने बहुत से डिपार्टमेंट्स जब इतने लोगों उसको कंपनीज और बिजनेसेस को बर्क डाउन कर देते हैं कि जी आज इधर इनका बंदा, बिजनेसेस हमें आके कहते हैं कि जी हमारी तो टीम सारा दिन यही भाग दौड़ करती रहती है, हम बिजनेस किस वक्त करेंगे। एक बंदा हमारा एक्साइज में भाग रहा है, तो एक हमारा PRA में भाग रहा है, तो एक हमारा EOBI की तरफ जा रहा है, एक हमारा पैसी की तरफ जा रहा है। जब हमारे लोग इधर भाग दौड़ से अभी फारग नहीं हुए होते, तो एक डिपार्टमेंट से एक इंस्पेक्टर आ जाता है चेक करने, फिर एक दूसरे डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर आ जाता है। तो आप हमें ये बताएं कि हम एक्चुअल अपना बिजनेस किस वक्त में करें। सो दीज आर द ग्राउंड रियलिटीज, दीज आर द प्रॉब्लम्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो हम सेकेंड जनरेशन की मैं आपसे अभी बात कर रही थी, तो वो हम ये सारे टैक्सेस के लिए प्रपोजल्स अब कर रहे हैं कि जी टैक्सेस को या तो कुछ को डिलीट कर दें, कुछ को कंबाइन कर दें, या उसकी कलेक्शन अथॉरिटी किसी एक को कर दें। जैसे बहुत सारे इनकम टैक्स में टैक्सेस आते हैं जो कस्टम्स वाले कलेक्ट करते हैं एट द पोर्ट, और वो इनकम टैक्स को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी तरह बहुत से विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं जो विदहोल्डिंग एजेंट्स विदहोल्ड करते हैं और फिर वो इधर आ जाते हैं। तो क्यों नहीं हम ऐसा कुछ करें कि प्रोविंशियल लेवल पर भी मल्टीपल टैक्सेस जो हैं उनको हम कम करें, और कम करने के बाद कलेक्शन का ऐसा प्रोसीजर रखें कि जहां बिजनेसेस को कम से कम ज़हमत करनी पड़े। तो ये टैक्सेस के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए। जी जी rate of tax which is higher, that will benefit the country. Like, let's suppose we import the cars, they take duty 200% or 300%. But if we reduce the tax, let's say it is 65, 70, 80%, and we the people of Pakistan, they import as many cars as possible. So in this way, there might be business activity. People are purchasing cars, and tax rate is minimized. Absolutely जी। इसके अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हमेशा चलते हैं, ठीक है। एक स्कूल ऑफ थॉट जो कहता है कि जी टैक्सेस बहुत ज़्यादा कर दो, इन टर्म्स डॉलर टर्म्स हमें पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। But then globally there is another school of thought which is broader and which is more prevalent, और मुझे वही बात कि कहना नहीं चाहिए, मुझे मिक्स ओपिनियन देनी चाहिए, लेकिन मैं भी इसी स्कूल ऑफ थॉट में यकीन रखती हूँ कि आप अपनी बेस ब्रॉड करें, आप ज़्यादा लोगों से टैक्सेस लें, लेकिन आप टैक्स रेट्स को मैनेजेबल रखें। जो आपने कार्स की एग्जांपल ली वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि एट टाइम्स हमें दीज आर लाइक 2 डिफरेंट थिंग्स विच वी आर टॉकिंग एक्चुअली। एक तो जनरल टैक्सेस है जिस पे मेरा तो ये व्यू है कि बिल्कुल ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस होनी चाहिए, और उसी छोटे सी नैरो डाउन लोगों को जो हमारे पास आ जाते हैं हम निचोड़ते चले जा रहे हैं वो ना करें। उसी को पेनल्टी लगेगी, उसी को एडिशनल टैक्स लगेगा, उसी को सेल्स टैक्स लगेगा, उसको हर किस्म का टैक्स लग जाएगा। जो नहीं है टैक्स नेट में वो फ़र्क है। सो येस, डेफिनेटली नो सेकंड थॉट अबाउट इट दैट वी नीड टू ब्रॉडन आवर टैक्स बेस, और उससे हम टैक्स वॉल्यूम को इंक्रीज करें रादर देन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ टैक्सेशन। लेकिन कुछ जगहों पे हमें ड्यूटीज़ लगानी पड़ती हैं, चाहे वो इंपोर्ट स्टेज पे लग रही हैं या रेगुलेटरी ड्यूटी लग रही है। अब तो खैर ग्लोबली कह रहे हैं फ्री ट्रेड हर तरफ होनी चाहिए, पोरस बॉर्डर्स होने चाहिए, लेकिन फिर भी हमें कुछ हद तक अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़, कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं। उसमें भी मेरा ज़ाती तौर पर एक व्यू है, और वो ये है कि आप ऐसे एक्शन ज़रूर लें
जो आपकी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें, बट माय व्यू इज़ कि उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए और उस टाइम पीरियड में आप वो पॉलिसी अडॉप्ट करें, वो स्टेप्स लें जिससे आपकी लोकल इंडस्ट्री भी तो वो करे ना, फ्लरिश करे, ताकि आप कहें अच्छा ये टैक्सेशन हमने 5 साल के लिए ये ड्यूटी लगा दी है ऑन इम्पोर्टेड कार्स, वट एवर, इम्पोर्टेड कार इसलिए एग्जांपल ले रही हूँ कि आपने उसकी बात की है, और आप कहें कि जी हमें 5 साल तक हम इससे प्रोटेक्ट करेंगे अपनी लोकल इंडस्ट्री को या 10 साल तक करेंगे, लेकिन इस दौरान साइमल्टेनियसली हम ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी लोकल इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन होना चाहिए, ताकि 10 साल के बाद जब ये ड्यूटी ख़त्म हो जाए तो हमारी लोकल इंडस्ट्री फिर भी फ्लरिश करनी हुई हो, इतनी हुई हो कि वो ओपन मार्केट में compete कर सके। अनफॉर्चुनेटली हम आज से नहीं, हम साल से ये कर रहे हैं। जब जीएसपी शुरू में आया, फिर जीएसपी प्लस आया, बल्कि उससे पहले गैट आया, जीएसपी तो अभी उसकी निस्बत रीसेंट है, जीएसपी प्लस में पाकिस्तान फॉल किया था 2014 जनवरी में, उससे पहले हम मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ जीएसपी में थे, उससे पहले ये गैट आया था WTO के अंडर, तो पाकिस्तान ने यही उस वक़्त भी बातें की, साल मुझे एग्जैक्ट साल नहीं याद, इट्स लाइक years बैक, हमने कहा जी हमें अभी गैट ना आप अप्लाई करें, हम अभी हमारी लोकल इंडस्ट्री इस काबिल नहीं है। फिर हम जब उससे आगे गए, फिर हमने कहा कि जी हम पे ये ना इंटरनेशनल चीज़ें अप्लाई करें WTO के अंडर, क्योंकि हमारी लोकल इंडस्ट्री अभी इस काबिल नहीं है। आज उसको 2 डेकेड से ज़्यादा हो गया उस बात को। आज जब हम CPEC की बात करते हैं, जब हम चाइनीज़ को या फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाने की बात करते हैं, जब हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे लोगों को लाने की बात करते हैं, तो फिर हमारी लोकल इंडस्ट्री रोती है कि जी आप इनको ला रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा। तो भाई आप लोगों ने किया क्या है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बोथ साइड्स। बात फिर थोड़ी सी डाइवर्ट हो रही है, लेकिन इतने पढ़े लिखे लोग और इतने इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पर बैठे हैं कि आई वुड लाइक टू शेयर दिस काबिल एतराज़ जुमला फ्रॉम माई साइड कि ये जितने चेम्बर्स और एसोसिएशंस हैं, अगर आप इनको डीपली जाकर देखें, इनके साथ वर्किंग करें, तो सारे नहीं, लेकिन इनमें से कई ऐसे हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा है कि वो असल बिजनेसेस को फ़ायदा नहीं पहुँचाते। वहाँ पर कुछ बड़े बिजनेसेस ने इतनी मोनोपोली क्रिएट की हुई है कि मुझे तो ये लगता है, मैं उनसे एट टाइम्स कहती भी हूँ कि मुझे लगता है आपके ये फोरम बिजनेसेस को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, बल्कि दूसरे बिजनेसेस को रोक रहे हैं इस लाइन में आने के लिए, ताकि आपकी मोनोपोली यहाँ पे कायम रहे। सो नॉट ऑल ऑफ देम बट मैनी ऑफ देम, उसमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो यही आपका उसका जवाब, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि रेट्स एंड ड्यूटीज डेफिनेटली कम होने चाहिए। ग्लोबल पॉलिसी दुनिया की ये है कि टैक्स रेट्स कम करें। हम भी कॉरपोरेट रेट्स को कम कर रहे हैं पाकिस्तान में, और हमने बहुत कम कर दिया। ये 40+ पे थे एक वक्त में, आज ये काफ़ी नीचे आ चुके हैं, और अब हमने फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन इसको मज़ीद नीचे लाने की हम बात कर रहे हैं। तो हम डेफिनेटली टैक्सेशन रेट्स को कम कर रहे हैं, बट पैरेलल एक्टिविटी ऑफ ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस, parallel activity of strengthening your local industry, parallel activity of making value addition in your products, ये सब चीज़ें बहुत अहम हैं, क्योंकि कब तक हम प्रोटेक्टिव मेजर्स के इस्तेमाल से अपने आप को बचाएंगे। Ultimately we should be able to face the international market. Enforcing contracts again is an area जहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ये चीज़ें ही आपके पास ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की आनी है कि जी कॉन्ट्रैक्ट में हमें ये कहा गया था, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये इश्यूज आ रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज़ एन एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट एरिया। और इस पर मैं ज़्यादा क्यों बोलूँ, क्योंकि ये वो एरिया है जिसमें आप लोग मुझसे बहुत बेहतर चीज़ों को जानते हैं, तो इसलिए मेरे लिए बेहतर है मैं इसको जल्दी स्किप करूँ। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, अब इसमें भी अक्रॉस बॉर्डर्स की बहुत सारी चीज़ें तो खैर हमने डिस्कशन में कवर भी कर ली हैं, लेकिन ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं कि कहीं हमारे जो इन्वॉइसेस हैं वो इन्फ्लेट हुए होते हैं, कहीं डिफ्लेट हुए होते हैं, डिपेंडिंग कि हम क्या चीज़ें किस मुल्क के साथ लेकर के जा रहे हैं। तो उसकी मैं एक बात आपसे शेयर करूं कि जो ट्रेड मैप है, ट्रेड मैप पे सारी दुनिया का ट्रेड का डाटा आता है।
तो बहुत से मुल्कों के साथ अगर हम ट्रेड मैप पे अपने डाटा को देखें तो वो हमारा जो ऑफिशियल हमारे जो ऑफिशियल फिगर्स आते हैं ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे आते हैं। तो अगर हम ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट को देखें तो हमें पता चलता है कि ट्रेड मैप का डेटा उनसे काफ़ी हद तक डिफरेंट होगा, काफ़ी हद तक। लाइक आई शेयर विद यू कि चाइना में हमारा ऑफिशियल डाटा ट्रेड का और चाइना गवर्नमेंट का ट्रेड का जो डाटा था, आज इस साल का मैं नहीं कह सकती, लेकिन कुछ 2-1 साल पहले तक उसके अंदर $4 बिलियन का डिफरेंस आ रहा था ट्रेड डाटा में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्लूडेड। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो ये डिफरेंस क्यों आता है? ये डिफरेंस इसी वजह से आता है कि कहीं पर इनवॉइसेस बिजनेसेस इन्फ्लेट करते हैं, कहीं डिफ्लेट करते हैं। कहीं पर अगर ये कह दिया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल स्टील के बिजनेस में इस प्रोडक्ट को एग्जेम्पशन मिल रही है तो वो अपने दूसरे प्रोडक्ट्स को भी उसी प्रोडक्ट के नाम से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शो कर देते हैं, जिससे एक प्रोडक्ट के फिगर्स डिफरेंट हो जाते हैं और जो जेन्युइन प्रोडक्ट आ जा रही होती है उसके डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को पे लीड करते हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट्स फिर आपके पास आएंगे एंड देन यू नीड टू रिजॉल्व दोज कॉन्फ्लिक्ट्स। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि डाटा कहाँ से आ रहा है, सोर्स क्या है उसका, HS कोड कौन सा है जिस पे वो आ रहे हैं, बिकॉज ये HS कोड से डिफ्रेंशिएट होगा कि HS कोड आप 6 के लेवल पे लेते हैं या आप 8 के लेवल पे, नॉर्मली 8 के लेवल पे लिया जाता है तो वो डिफाइन हो जाती हैं चीज़ें। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द HS कोड्स? एनीबडी? आप लोगों को उनकी टर्मिनोलॉजी पता होगी कि ये क्या होता है, बिकॉज कमर्शियल कोड्स है ना, आपके पास तो इसी किस्म के डिस्प्यूट्स आने हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट था, इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इन्होंने ये प्रोडक्ट हमें भेज दिया। ये बहुत बड़ा इशू होता है ना कि हमें जी प्रोडक्ट डिफरेंट आ गया है। अब कहीं तो वो बहुत मोटी सी चीज़ होगी, आपको पता चल जाएगा जी कहाँ कंप्यूटर था, भेज उसने टिश्यू के डब्बे दिए हैं, तो ये तो बात हो गई। लेकिन HS कोड डिफ्रेंशिएशन इतनी माइन्यूट उसी के अंदर आती है कि एक ही प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल आपका एक HS कोड 1 में आप कहते हैं कि सोफ़ा इज़ द आइटम, 2 उसको डिफ्रेंशिएट कर देगा कि ये सोफाज HS कोड 2 में, ये कस्टम्स वालों का ये सारा होता है और ये आपके लिए बहुत अहम होगा क्योंकि ये बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स में होगा और कस्टम ड्यूटीज़ में ये बहुत अहम होता है। तो HS कोड 2 उसको डिफ्रेंशिएट कर देगा कि सोफ़ा शुड बी 3 सीटर। HS कोड 4 में जब आप जाएंगे तो वो ये कहेगा कि ये जो 3 सीटर सोफ़ा है इसके अंदर ये लेदर का सोफ़ा होना चाहिए। HS कोड 5 कहेगा कि 3 सीटर है भी होगा और लेदर भी होगा, उसको ब्राउन कलर में होना चाहिए। 5 का लेवल कहेगा कि उसके अंदर लेदर किस क्वालिटी का होना चाहिए। HS कोड 6 उसको उस लेवल पे ले जाएगा कि उसका डिज़ाइन में ये 3 बटन भी लगे होने चाहिए। सो इस तरह वो डिफ्रेंशिएट होता जाता है और HS कोड 8 तक जब आप आते हैं तो वो प्रोडक्ट की बहुत सारी डिटेल उसमें आ जाती है। तो कई ऐसी चीज़ें होंगी कि जहाँ कॉन्ट्रैक्ट HS कोड 6 के लेवल पे हुआ होगा, सो हम उसको ब्रॉड कर रहे हैं। 8 पे होगा तो बहुत माइन्यूट डिटेल्स होंगी। इसी तरह ऊपर जाते जाएंगे तो उसकी डिटेल्स एंड स्पेसिफिकेशंस कम होती जाएंगी। सो HS कोड आपको बेसिकली कस्टम्स ड्यूटीज़ के वक्त में इस्तेमाल करना होता है और वो स्पेसिफिकेशंस ऑफ द प्रोडक्ट पे बात करता है, कौन सी प्रोडक्ट लाइन है, किस HS कोड पे जा रही है। फिर इसमें एक और चीज़ मैं आपसे क्विकली शेयर कर लूँ कि पाकिस्तान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, पाकिस्तान के PTAs होते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एग्रीमेंट्स मुख्तलिफ मुल्कों के साथ। तो वहाँ जब आपका उनसे एग्रीमेंट हुआ होता है तो वो HS कोड्स पे होता है कि जी इतनी प्रोडक्ट लाइन्स होंगी और इन प्रोडक्ट लाइन्स पे आगे ये HS कोड होंगे। तो ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल में तो आपको नहीं चाहिए होंगी, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि FTAs भी होते हैं, PTAs भी होते हैं,
डबल टैक्सेशन ट्रीटीज भी होती हैं, और HS कोड चीज़ क्या होती है, अब आपको तो ज़ाहिर उसकी एक पूरी किताब होती है, उसमें से आपका पास जो भी कोई केस लेके आएगा वो स्पेसिफाई कर देंगे जी ये फलां HS कोड इस प्रोडक्ट लाइन का ये HS कोड है. बट माई पर्पज इन ऑब्वियसली दिस वेरी वेरी लिमिटेड टाइम इज टू लेट यू नो दैट दीज आर द थिंग्स, ये टर्मिनोलॉजीज होती हैं ट्रेड के अंदर. रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, अगैन इसमें भी आप लोगों को बहुत डिटेल्स ऑलरेडी पता है. प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, ये EODB में है, इसके अंदर ऐसा हम लोगों ने कोई इतना वो नहीं किया. PRMI is the Pakistan Regulatory Modernization Initiative. This is the initiative that I was talking about in the beginning. This is the second step of EODB. Ease of doing business, उसके 10 इंडिकेटर्स हमने उस पर बात कर ली. उसका सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म इज PRMI. PRMI मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया है, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा अब बात मज़ीद क्या करनी, मैंने आपको आई जस्ट शेयर्ड विद यू कि इसका एक रेगुलेटरी कैटलॉग है, और इसका मकसद ये है कि तमाम रेगुलेशंस फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे उसकी मैपिंग की जाए, फिर उसका एनालिसिस किया जाए, और फिर ये डिसाइड किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनालिसिस कि इसमें से किसको ख़त्म हो जाना चाहिए, किसको मॉडर्नाइज हो जाना चाहिए, और उसके लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है. सो दिस इज PRMI. सॉरी, किसी ने कुछ कहा है? नहीं, ओके. अच्छा, इसमें ये जी, अच्छा टाइम मेरे सामने आ रहा है. आई स्टिल हैव 5 मिनट्स टू गो. मैं इसीलिए हमेशा प्रेजेंटर व्यू पे ये लगाती हूँ कि मैं टाइम से ना आगे चली जाऊँ. ओके, आई जस्ट वाइंड अप. एंड देन इज द थर्ड फाइनल स्टेप विच इज रेगुलेटरी बुलेटिन. जो मैंने आपसे कहा था कि बुलेटिन इज द, ये बुलेटिन होता है, ये वर्ल्ड बैंक ने का बेसिकली प्रोजेक्ट है, लेकिन आई फाइंड इट वेरी यूजफुल. तो आपकी जब मैपिंग हो जाएगी रेगुलेशंस की जो EODB में काम आती हैं, उस मैपिंग के बाद इस पे फिल्टर्स होते हैं. तो पहला फिल्टर है ये जो नीले रंग का आप देख रहे हैं, उस पे लिखा हुआ है फर्स्ट रिव्यू. फर्स्ट रिव्यू में आपको पता चल जाएगा कि इन फिल्टर हो जाएं, ये रेगुलेशंस हमें नहीं चाहिए. फिर आपका सेकेंड रिव्यू होता है विच इज़ द सेकेंड ब्लू बार. आपको ग्रीन नज़र आ रही है, मुझे हाँ ग्रीन ही है वैसे यहाँ भी, ठीक है जी, ग्रीन बार, ग्रीनिश ब्लू, ओके. तो सेकेंड रिव्यू में आपको पता चलेगा कि ये मज़ीद फिल्टर हो जाएंगी रेगुलेशंस, एंड अल्टीमेटली थर्ड रिव्यू के बाद आपके पास फाइनल आ जाएगा कि जी अब ये एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस हैं, इनको हमें यहाँ पर रखने की ज़रूरत है, इससे हम मज़ीद कमी नहीं कर सकते. सो इस बुलेटिन स्ट्रैटेजी के बाद, अब मैं एक्शन मेन्यू को आई विल स्किप. इस बुलेटिन की एक्टिविटी के बाद आपके पास रेगुलेशंस मिनिमाइज हो जाएंगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपकी रैंकिंग ऊपर चली जाएगी. सो विद दीज वर्ड्स आई से थैंक्स टू यू, एंड आई अस्यूम कि इस टॉक में एटलीस्ट आप लोग रजिस्टर कर लें कि EODB क्या है, PRMI क्या है, बुलेटिन क्या है, CPEC is China-Pakistan Economic Corridor, SEZs are Special Economic Zones. So these are the buzzwords that you should know and be oriented about it when you leave this hall. Thank you very much. If there is any urgent question, most welcome.